You need to transfer your battle to God. आपको अपना युद्ध परमेश्वर के हाथ में देना है। You need to say to God, आपको परमेश्वर से कहना है that battle is not mine. युद्ध मेरा नहीं है, Because the Bible says in Ephesians 6:12, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है इफिसियों 6 अध्याय और 12 वचन में, for our struggle is not against flesh and blood, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू के विरुद्ध में नहीं, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. क्योंकि बल्कि दुरात्मा की आत्मिक शक्तियों से है जो आकाश में है। You need to take that battle to God and say, God, this is not my battle, it's a spiritual battle. आपको ये युद्ध परमेश्वर के हाथ में देना है और कहना है कि ये आत्मिक युद्ध है, मेरा युद्ध नहीं है। When you had a problem in your house building, जब आपके घर समस्या आई थी आपके घर बनाते समय, we used to pray again and again. हम बार-बार प्रार्थना करते थे, But somehow God moved in it and God made that house standing. परमेश्वर ने वहाँ पे कार्य किया और वो घर पूरा होने के लिए सहायता की। No matter how much trouble you had, कितने भी समस्याएं क्यों ना आई, because we knew Ephesians 6:12. क्योंकि हम इफिसियों 6 अध्याय का वचन जानते थे। We were praying for and we are still praying for the opponent. और हम प्रार्थना कर रहे थे और हम अभी भी अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। We need to pray for the opponent. हमारे विरोधी के लिए हमको प्रार्थना करना है। Amen. Matthew 5:44 says, मत्ती 5 अध्याय और 44 वचन में लिखा है, love your enemy and pray for those who persecute you. आप अपने शत्रु से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। If you have an enemy in your life अगर आपके जीवन में कोई शत्रु है and who is trying to give you a tough time like Goliath, और वो आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी लाने के लिए कोशिश कर रहा है, this is your sling. और ये आपके लिए उपाय है। Sling, this is your sling. ये आपकी गोफन है। You need to use this sling. आपको इसको इस्तेमाल करना है। You need to know that your enemy is not physical, but your enemy is a spiritual one. आपको यह बात जाननी जरूरी है कि आपका दुश्मन शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है। If you are having a problem with your spouse, अगर आपके जीवन में पति पत्नी के बीच में समस्या है, if you are having a problem with your children, अगर बच्चों के साथ आपके जीवन में if समस्या you are है, having a problem with anybody in your church, अगर कलीसिया में किसी के साथ आपके संबंध ठीक नहीं है, if you are having a problem with your neighborhood, अगर आपके पड़ोसी के साथ समस्या है, you need to do this Matthew 5:44, आपको यही करना है। मत्ती 5 अध्याय 44 वचन में लिखा है, saying love your enemies and pray for those who persecute you. आप दुश्मन से प्यार करना है और जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है। How can you forgive them? हम उनको कैसे क्षमा कर सकते हैं? Bible says forgive them. परमेश्वर का वचन कहता है उनको क्षमा कर दो। For if you forgive other people when they sin against you, अगर आप दूसरे को क्षमा करोगे जब वो आपके विरुद्ध में पाप करते हैं, your heavenly Father will also forgive you. तो आपका स्वर्गीय पिता आपको भी क्षमा करेगा। But if you do not forgive others their sins, लेकिन अगर आप दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करते हो, your Father will not forgive your sins. तो आपका स्वर्गीय पिता आपके भी पापों को क्षमा नहीं So करेगा। we as a Christian, we need to forgive our brothers and sisters. That's my sling. एक क्रिस्ती होने के नाते हमें अपने भाई बहन को क्षमा करना है, वही हमारी गोपन है। Amen. Amen. Hallelujah. Proverbs 25:21-22 says, नीति वचन 25 अध्याय में लिखा है, if your enemy is hungry, अगर आपका बैरी भूखा है give him food to eat. उसको भोजन दो, If he is thirsty, अगर वो प्यासा है give him water to drink. उसको पानी दो। In doing this, ऐसा करके you will heap burning coals on his head, तू उसके सर पर अंगारे डालेगा and the Lord will reward you. और यहोवा तुझे उसका फल देगा। So when you have your enemy, और फिर जब आपके जीवन में दुश्मन है, you need to remember Ephesians 6:12, तो आपको ये इफिसियों से अध्याय का वचन याद रखना है। believing that our fight is not with flesh and blood. यह विश्वास करते हुए कि हमारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं, My fight is against the devil. हमारा युद्ध शैतान के विरुद्ध में है। And tell him, I want to win my brother in Christ.
और आप उससे बोलो कि मैं अपने भाई को जीतना चाहता हूँ मसीह के लिए। If the enemy is coming against you, say to the Satan, get lost. I want to win this sister again to the Lord. अगर दुश्मन आपके विरुद्ध में आ रहा है शैतान को, तो आप बोलो कि मैं इस बहन को जीतना चाहती हूँ मसीह के लिए। So that we should not retaliate with them. और हमको उनका विरोध नहीं, सामना नहीं करना We है। need to love them. हमको प्रेम दिखाना है। That is the fruits that we need to bring when we become born again. और वही फल हमको हमारे जीवन में उत्पन्न करने जब हमारा नया जन्म होता है। Amen. Matthew 5:46-47. मत्ती 5 अध्याय में लिखा है 46 और 47 में, If you love those who love you, अगर आप उनसे प्रेम करते हो जो आपसे प्रेम रखते हैं, what reward will you get? तो आपको क्या प्रतिफल मिलेगा? Are not even the tax collectors doing that? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? And if you greet only your own people, और अगर आप सिर्फ उनसे अपना जो आपको अच्छे लगते हैं उनसे मिलते हैं, what are you doing more than others? आप दूसरों से क्या बेहतर काम कर रहे हो? Do not even pagans do that? क्या बाहर वाले भी ऐसा ही नहीं करते? What does it mean? इसका मतलब क्या है? We don't want to forgive our brothers. हम अपने भाई बहन को क्षमा नहीं करना We don't want to चाहते। forgive our sisters. हम अपने बहन को क्षमा नहीं करना We चाहते। want to only wish to those who love us. हम सिर्फ उनसे मिलना चाहते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। Bible says, Jesus says, don't you know even the sinners do the same? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको पता नहीं है कि पापी लोग ऐसे ही करते हैं। Don't you know that even the sinners do the same? क्या आप नहीं जानते कि पापी ऐसे ही करते हैं? You need to ask this question to ourselves. Each one should ask a question. हर किसी को ये सवाल अपने आप से पूछना है, How can I love my brother? मैं कैसे अपने भाई से प्रेम कर सकता Give हूँ? them water when they need. उनको पानी दे सकता हूँ। What does it mean? उसका मतलब क्या है? Don't retaliate to them. आप उनका सामना मत करो। Often there is a problem in the building, right? और एक बिल्डिंग में कभी कभी समस्या हो जाती है। When people are staying in the same building, 4 flats, and there is a open place for four flats. 4 फ्लैट रहते हैं और जहाँ पे एक ओपन जगह रहती है सबके लिए, And each one door is close by to the other door. और सबके दरवाजे सामने सामने रहते हैं। And there is so much trouble. We often tend to have an argument. कितनी समस्या होती है, कभी कभी हम एक दूसरे से वाद विवाद करने लगते हैं। But as a Christian, we must say, I want to forgive that person. लेकिन एक क्रिस्ती होने के नाते हमें कहना है कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहता हूँ।